یہ کہانی ہے زارا اور محسن کی، ایک خوشباش نئے شادی شدہ جوڑے کی، جنہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک خاص سفر سے کیا۔ ہنی مون کے لیے محسن نے ایک جگہ چنی جو عام نہیں تھی، ایک پر اسرار فارم ہاؤس جو جنگل کے قلب میں تنہائی کی آخری حد پر واقع تھا۔ یہ جگہ نہ صرف خاموش تھی بلکہ اس کی فضا میں ایک عجیب سی سنسنی تھی، جیسے ہر درخت، ہر جھونکا کوئی راز چھپائے بیٹھا ہو۔ یہ فیصلہ ان کی زندگیوں کا رخ بدلنے والا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ان کی گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ فضا میں پرندوں کی آخری آوازیں گونج رہی تھیں، ہوا میں سردی کی لہر تھی، اور جنگل کی سبز خاموشی ایک لمحاتی سکون بخش رہی تھی۔ لیکن یہ سکون جلد ہی ایک انجانے خوف میں بدلنے لگا۔ فارم ہاؤس اپنی ٹوٹی باڑ، جھکی کھڑکیوں اور سنسان راہداریوں کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے کسی کا انتظار کر رہا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج رات کوئی آنے والا ہے۔ جیسے ہی اندھیرا گہرا ہوا، فارم ہاؤس نے اپنا چہرہ بدلنا شروع کر دیا۔ دروازے چرچرانے لگے، کھڑکیوں پر انجان دستکیں سنائی دینے لگیں، اور دیواروں پر سائے ناچنے لگے۔ ہر آواز اب ایک انجانی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ مکان جیسے سانس لے رہا ہو، اور ہر سانس کے ساتھ خوف کی ایک نئی لہر زارا اور محسن کے دلوں میں اترتی جا رہی تھی۔ رات کے ہر لمحے کے ساتھ فارم ہاؤس مزید زندہ محسوس ہونے لگا۔ دروازے زور سے ہلنے لگے، دیواروں پر ناچتے سائے عجیب و غریب اشکال اختیار کرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مکان کی آنکھیں کھل گئی ہوں اور وہ اپنے مہمانوں کو بغور دیکھ رہا ہو۔ زارا اور محسن اب صرف مہمان نہیں تھے، وہ شکار بن چکے تھے۔ اچانک خاموشی ایک خوفناک قہقہے سے چٹخ گئی۔ اندھیرے میں سے ایک سیاہ بدرو ابھری، جس کی آنکھیں دہکتے شعلوں کی مانند تھیں۔ اس کے وجود سے ایسی گھٹن پھیل رہی تھی جیسے مکان کا ہر گوشہ اس کے قبضے میں آ گیا ہو۔ زارا اور محسن ساکت کھڑے تھے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بدروح نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ بلند کیا اور فضا میں لرزتی طاقت پھیل گئی۔ محسن زمین سے اوپر اٹھ گیا، جیسے کسی نادیدہ شکنجے نے اسے جکڑ لیا ہو۔ زارا کی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ محسن کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ دیوار سے ٹکرا گئی۔ خون کی بوندیں چھت سے ٹپکنے لگی۔ محسن کی سانس ہمیشہ کے لیے تھم گئی۔ زارا پتھرائی کھڑی تھی، اس کے وجود سے آواز، سانس اور حرکت سب چھن چکے تھے۔ بدروح نے ایک لمحے کے لیے زارا کی طرف دیکھا بھی نہیں، جیسے وہ کسی اور مقصد کے تحت آئی ہو۔ پھر وہ سایہ اندھیرے میں تحلیل ہو گیا، اور مکان ایک بار پھر قبرستان جیسی خاموشی میں ڈوب گیا۔ اندھیروں کی صدا ہے، روح کا فسانہ ہے، زارا کے دل میں چلتی ڈر کی کہانی ہے۔ محبت کی وہ راہیں ظلم میں بدل گئی، بدرو کی آنکھوں سے راتیں دہل گئی۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر جیسے کسی اندرونی طاقت نے زارا کو جھنجھوڑا، وہ بھاگ پڑی۔ دروازہ کھولا، سرد ہوا جسم سے ٹکرائی، گاڑی کی طرف لپکی۔ انجن سٹارٹ کیا، گاڑی دھڑکی، اور پھر گرج کے ساتھ چل پڑی۔ زارا نے ایک جھٹکے سے ایکسیلریٹر دبایا، اور گاڑی اندھیرے جنگل میں چیختے ہوئے ٹائروں کے ساتھ دوڑ پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ذہن میں ایک ہی سوال تھا، بدروح نے محسن کو کیوں چنا؟
और उसे क्यों छोड़ दिया। फार्म हाउस पीछे धुंधलके में गुम हो गया, मगर उस रात का जख्म ज़ारा की रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। ज़ारा अपनी जान तो बचा लाई थी, लेकिन दिल में खौफ अब भी जमा हुआ था, जैसे सर्द बर्फ जो पिघलने का नाम ही न ले। अंधेरी रात के सदमे ने उसे तोड़ दिया था, मगर हिम्मत ने अब भी उसे संभाल रखा था। कांपते हाथों और लरसती जबान के साथ वो सीधी पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां उसने अपनी हौलनाक रात की कहानी सुनाई। उसकी आंखों में दहशत की झलक थी, लेकिन उसके अल्फाज को सुनने वालों की निगाहों में यकीन कम और हैरत ज्यादा थी। जैसे वो सब कुछ सुन तो रहे थे, मगर मान नहीं पा रहे थे। ट्यूबलाइट की भमलाहट, कागजों के पलटने की आवाज और पुलिस रेडियो की सरगोशियां, उन सब के बीच ज़ारा की कहानी एक और ही दुनिया की लग रही थी। ये वो दुनिया थी जहां अंधेरा जीत गया था और रोशनी बेबस खड़ी थी। अगली सुबह पुलिस ज़ारा को साथ लेकर फार्म हाउस पहुंची, मगर अब मंजर बदल चुका था। सूरज की नर्म रोशनी दरख्तों की टहनियों से छिनकर नीचे गिर रही थी, और वही मकान जो रात को वहशत से दहक रहा था, दिन के उजाले में बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। बाहर सब कुछ पर सुकून लग रहा था, लेकिन अंदर अब भी रात की हौलनाकी के सबूत मौजूद थे। फर्श पर जमे खून के धब्बे, टूटे शीशे, बिखरी कुर्सियां, सब कुछ चीख चीख कर बता रहा था कि ये घर अब सिर्फ ईंटों और लकड़ी का ढांचा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां मौत ने अपने कदम जमा लिए थे। मोहसिन की लाश अब भी वहीं थी, खामोश और बेजान। पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सब कुछ नोट करके फाइल में दर्ज करते गए और बिल आखिर एक नामालूम बदरूह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मगर ये कागजी कार्रवाई ज़ारा के दुख का मदावा कैसे कर सकती थी। मोहसिन की लाश उसके विरथा के हवाले कर दी गई और ज़ारा खामोशी से उसके पहलू में खड़ी आंसू बहाती रही। कुछ दिन बाद मोहसिन को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कुरान खानी की मध्यम आवाज़ों और रोने की हिचकियों के बीच ज़ारा के दिल पर एक ऐसा बोझ आन बैठा जिसे वो चाहकर भी हटा नहीं सकती थी। हर पल उसकी आंखों के सामने वही मंजर लौट आता, मोहसिन का बेबस जिस्म, बदरूह की सुर्ख आंखें और वो जोरदार टक्कर जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी। दिन गुजरते गए, मगर ज़ारा के जख्म भर न पाए। रातें जागते जागते कटती रहीं। हर ख्वाब में वो बदरूह का चेहरा देखती और हर जागती साथ में मोहसिन की चीख सुनाई देती। खौफ अब उसकी रगों में खून की तरह दौड़ रहा था। लेकिन फिर एक लम्हा आया जब आईने के सामने खड़ी ज़ारा की आंखों में खौफ की जगह अज़्म की चमक उभरी। उसने अपनी लरसती सांसों को काबू में किया और दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। अब भागना नहीं, अब छुपना नहीं। उसे उस बदरूह का सामना करना होगा। उसे उस खौफ के खिलाफ खड़ा होना होगा जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। ज़ारा ने फैसला कर लिया था कि अब वो भागेगी नहीं। खौफ ने उसके शौहर की जान ली थी, लेकिन अब यही खौफ उसकी हिम्मत को जगा रहा था। उसने सोचा, मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो उस अंधेरी ताकत का मुकाबला कर सके। मगर यह आसान न था। ज़ारा कई दिन तक शहरों और गांवों में ऐसे आदमी की तलाश में फिरती रही। कभी दरबार पर जाकर दुआएं मांगती, कभी किसी बुजुर्ग का पता पूछती, तो कभी लोगों के तंजिया कह कहे सुनती। कोई कहता ये सब वाहिमा है, कोई उसे पागल समझता और कोई मजाक में टाल देता। लेकिन ज़ारा की हिम्मत टूटने को ना थी। आखिरकार एक सुनसान मज़ार पर, जहां झाड़ियों में परिंदों की आवाज़ गूंजती थी और हवा में बुखूर की खुशबू रची हुई थी, वो एक दरवेश निमा बुजुर्ग तक जा पहुंची। सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में अमीक सुकून और हाथों में तस्बीह। ये थे मिलंग बाबा। ज़ारा ने कांपते दिल के साथ अपनी कहानी सुनाई। बाबा ने गौर से सुना, आंखें बंद कीं और आसमान की तरफ रुख करके कहा, वो जगह आम नहीं, वहां जुल्म की चीखें अब भी कैद हैं। मगर याद रख, जीत हमेशा हक की होगी।
चंद दिन बाद ज़ारा और उसके वालिद के साथ मलंग बाबा दिन के वक्त फार्म हाउस आए। उजाला था, लेकिन मकान फिर भी वीरान कब्रिस्तान सा लग रहा था। बाबा ने जगह का जायजा लिया, जंजीरों की आहट सुनी जो आम कान नहीं सुन सकते थे, और यकीन दिलाया कि असल मुकाबला रात के अंधेरों में ही होगा। रात अंधेरी होते फार्म हाउस की दीवारें जैसे जिंदा हो गई थी। मलंग बाबा ने हिफाजती हिसार बनाया, विर्द पड़ा और ज़ारा और उसके वालिद को हिसार के अंदर बिठाया। अचानक तेज हवा के झोंकों के साथ बदरूह ज़ाहिर हुई, बाल बिखरे, आंखों में दहकते अंगारे और आवाज़ किसी खाई की गहराई से उभरती हुई। उसका कहका मकान को हिला देने वाला था। वो ज़ारा के करीब बढ़ने लगी। मलंग बाबा ने बुलंद आवाज में विर्द शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बदरूह को रोकने की कोशिश की, कमरे के चिराग एक एक करके बुझने लगे। बदरूह ने अपना हाथ उठाया और हिसार के किनारे जलने लगे। बाबा के तावीज़ लरस गए, उनकी सांसें भारी हो गईं। पसीना उनके माथे पर मोतियों की तरह उभर आया। ज़ारा चीख उठी, बाबा जी, ये हमें मार डालेगी। लेकिन मलंग बाबा जान गए कि ये रूह आम नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। उस वक्त काबू पाना मुमकिन न था। मलंग बाबा ने विर्द रोक दिया और जोरा जोरी से ज़ारा और उसके वालिद को फार्म हाउस से बाहर खींचते हुए कहा, अभी वक्त नहीं, ये रूह सदियों के जख्मों के साथ जिंदा है। मुझे तैयारी करनी होगी, वरना हम सब फना हो जाएंगे। बदरूह का कहकहा उनके पीछे देर तक गूंजता रहा, जैसे वो अपने शिकार को भागते देखकर मजीद ताकतवर हो गई हो। ज़ारा के ख्वाब टूटे, मोहसिन हुआ जुदा, फार्म हाउस के सायों में छीन गया सुकून सदा। जंजीरों की झनकार में चीखे कैद रह गई, इंतकाम की आग में सदियों की घड़ियां बह गई। मज़ार पर वापस जाकर मलंग बाबा ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं। ये लड़ाई आसान नहीं। मुझे अपने इल्म, अपने विर्द और अपनी हिम्मत को नया रंग देना होगा। अगली बार वो रूह या तो कैद होगी या हम सब खत्म हो जाएंगे। ज़ारा कई दिनों से खौफ और इंतजार के बीच जिंदा थी। मलंग बाबा की पहली नाकामी ने उसे मजीद हिला दिया था, लेकिन अब बाबा ने वादा किया था कि वो दोबारा आएंगे, ज्यादा तैयारी के साथ। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो वापस आए, हाथों में नए तावीज़, मुक़द्दस कलिमात और एक छोटी सी बोतल जिसे उन्होंने मुक़द्दस कैद कहा। रात के सन्नाटे में फार्म हाउस के अंदर अंधेरा और ज्यादा गंभीर लग रहा था। अचानक जंजीरों की झिनकार गूंजी, दरवाजे खुद ब खुद बंद हुए और एक औरत के रोने की आवाज हर दीवार से टकराने लगी। वही साया, वही आग भरी आंखें। बदरूह नमूदार हुई। मलंग बाबा को कुछ वक्त दरकार था, इसलिए उन्होंने बदरूह से सवाल किया कि वो कौन है और क्या चाहती है। इस बार उसने अपने राज खोल दिए। मैंने सिर्फ मोहब्बत चाही थी, मगर मुझे जंजीरों में जकड़ दिया गया। मेरा शौहर रोज मुझे मारता, जलील करता, और एक रात उसने मुझे उसी फार्म हाउस में मौत के घाट उतार दिया। दीवारों पर साए जिंदा हो गए। एक औरत जंजीरों में जकड़ी दिखाई दी। एक मर्द की लाठी बार बार बुलंद होकर गिरती रही। ज़ारा लरज उठी। ये जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन बदरूह का गुस्सा अब इंसानियत पर नहीं, बल्कि सिर्फ मर्दों पर था। इसीलिए मैं सबको सजा दूंगी, हर उसको जो औरत को कमजोर समझेगा। मलंग बाबा आगे बढ़े।
उनके विर्द की आवाज कमरे में गूंजने लगी। बेटी, जुल्म सहना और जुल्म करना दो अलग बातें हैं। तेरा इंतकाम तुझे सकून नहीं देगा। सकून सिर्फ अल्लाह की रहमत में है। बदरूह कहका मारकर चीखी, इंसाफ? अगर इंसाफ होता तो मैं जिंदा रहती। अब इंसाफ मैं खुद करूंगी। हवा तूफान की तरह चलने लगी। चराग बुझ गए, दीवारें लरज उठी। मलंग बाबा ने तावीज जलाया और एक रोशन दायरा उनके गिर्द बनने लगा। रोशनी और अंधेरा आमने सामने खड़े हो गए। बदरूह धुएं के लंबे बादल में बदल गई। उसकी चीख कान फाड़ देने वाली थी। वो सीधी जारा की तरफ लपकी, जैसे उसे अपनी इंतकामी आग में जला देना चाहती हो। जारा खौफ से चीख उठी, लेकिन उसी लम्हे मलंग बाबा ने बोतल उठाकर बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर तुझे कैद करता हूं। बोतल से रोशनी फूटी, धुआं अंदर खींचने लगा। बदरूह की चीखें कमरे को दहला देने वाली थी। उसका वजूद टूटकर लम्हा लम्हा सिमेटने लगा। उसके हाथ मुड़ गए, चेहरा बिगड़ गया और वो कैद के हिसार में घुस गया। एक जोरदार धमाके के बाद कमरे में खामोशी छा गई। बोतल के अंदर भूर सा चलता रहा, फिर वो भी थम गया। हवा रुक गई। वक्त जैसे लम्हे भर के लिए थम गया। जारा के वालिद ने सुकून की सांस ली। अल्लाह का शुक्र है, सब खत्म हो गया। लेकिन मलंग बाबा ने सर झुकाकर कहा, नहीं, ये खत्म नहीं हुआ, सिर्फ कैद हुआ है। ऐसी रूहें मुकम्मल खत्म नहीं होती। उधर बोतल एक लम्हे के लिए हल्की सी कांपती है, जैसे अंदर अब भी कोई जोर लगा रहा हो। जारा को सुकून तो मिला, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बदरूह का इंतकाम अभी बाकी है।